Hello class, I welcome all of you to this video tutorial. I am Rishi Aryan and I am here to discuss the physics portion of standard 9. In the last class, I have discussed about the difference between mass and weight, how the mass is constant all over the universe and how the weight is vary from place to place, and I have also discussed about the thrust and pressure. All of these things discussed in the last class. In the today class, we will discuss about the buoyancy and some concept about Archimedes Principle and how the body floats in a fluid and how the body sink in a fluid. Also all of these things concept we will discuss in the today's class. So let's start the class. Today's first topic is what is buoyancy. बायोन्सी क्या होता है, सबसे पहले आपको ये जानना है. बायोन्सी का कॉन्सेप्ट जानने के बाद ही हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल को जान सकते हैं और बॉडी फ्लोट कैसे हो रहा है. ऑल ऑफ दिस थिंग्स यू हैव क्लियर इन द आर्किमिडीज प्रिंसिपल. सो बायोन्सी, आई हैव डिस्कस्ड अबाउट हाउ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज अ weight of any body is nothing, it is a force of attraction by the earth. So when you place any object in a fluid, either fluid is a gas or a liquid. Okay, let us consider here water is your fluid. When you place any object in a fluid, then fluid also exert some, because fluid has also mass, so fluid also exerts some upward force on the object. Object has a weight, so object तो नीचे फोर्स लगाएगा ही अपना, वो अपना वेट है, तो वो तो जहाँ भी रहेगा अपना नीचे की तरफ उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल लीजिए या वेट बोल लीजिए, वो लगाएगा. बट फ्लूइड के पास भी अपना कुछ मास है. देन फ्लूइड हैज़ ऑल्सो एक्सर्ट सम अपवर्ड फोर्स on the object, and this upward force is nothing. This upward force is called buoyancy force or force of buoyancy. So if you define what is buoyancy, when or force exerted by any fluid, force exerted by any fluid on the or any fluid upon the force up, or that is not force, upward force, because buoyancy is also force has always exerted an upward force. Then upward force exerted by any fluid upon the object. बायोन्सी क्या होता है? अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय एनी फ्लूइड अपॉन द ऑब्जेक्ट, या अपॉन की जगह ऑन लिख दीजिए, ज़्यादा सही है. फोर्स एक्सर्टेड बाय एनी फ्लूइड exerted by any fluid on the object is known as force of buoyancy, या इसी को हम लोग बायोन्सी फोर्स भी बोलते हैं. तो बायोन्सी क्या होता है समझ में आ गया आपको. नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इन दिस टॉपिक इज हाउ द body sink in a fluid and how the body float. Then you have think about the density phenomena. What is density? So you have learned in a class 8th also, mass is equal to or density is equal to mass by volume. Then if you placed any object in a fluid, either a fluid, a liquid or a gas, if the density of object is less than that of the fluid, जो फ्लूइड में आप ऑब्जेक्ट को ले जा रहे हैं, if density of object is less than that of the fluid, then the body becomes float, वो सिंक नहीं करेगा, तैरेगा. and when the density of that object is more than that of the fluid, then the body will be sink, वो बॉडी डूब जाएगा अगर डेंसिटी उसका ज़्यादा है. तो डेंसिटी एक छोटा सा यहाँ पे फॉर्मूला था, ये मैंने आपको रिवाइज कराया.
तो आपको समझ आया कि कौन सा ऑब्जेक्ट फ्लूइड में तैरेगा और कौन सा डूबेगा, अभी हम फिलहाल यही जान रहे हैं। अगर तैरेगा तो कैसे तैरेगा, ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल बताएगा कि फ्लूइड अगर बॉडी कोई तैरता है तो वो कैसे तैरता है, वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल डिस्क्राइब करेंगे। अभी हम जस्ट 10 मिनट्स में आई विल डिस्कस अबाउट द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। सो यू विल राइट दिस कॉन्सेप्ट हियर ऑल्सो, व्हेन द density of object is less than the density of fluid, then the object is float when the density of object is less than the density of fluid, then the object is float, and when the density of object is more than the density of fluid, when the density of object is less than the density of fluid, then the object is float, and when the density of object is more than the density of fluid, then the object will be sink. ओके मैंने बोला कि जब डेंसिटी आपका फ्लूइड से कम होगा तो वो फ्लूइड पे तैरेगा, अगर डेंसिटी फ्लूइड से ज़्यादा होगा तो फ्लूइड में वो डूब जाएगा। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था यहाँ पे, तो pause the video and note down this concept here. Now the next topic in this chapter is what is Archimedes Principle. Archimedes Principle. What is Archimedes Principle? तो देखिए आपने you saw in a sea a large size of boat is easily floating in a sea, and when you put a small nail in a fluid then it will easily sink. उतना बड़ा बड़ा जहाज कैसे पानी में तैर जाता है और आपका एक छोटा सा नेल पानी में क्यों डूब जाता है, ये आर्किमिडीज एक साइंटिस्ट थे जिनके द्वारा ये कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया गया था. दैट्स वाई द नेम ऑफ द प्रिंसिपल इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल. ओके, सो जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट को when we placed any object in a fluid, either a fluid may be water or oil or anything or gas. Fluid, that means anything. Don't confuse here. Fluid means only liquid. No, fluid means liquid and gas both. So when you placed any object in a fluid, then the upward force exerted by the fluid is equal to the mass or the weight of fluid displaced by the object. कहने का मतलब है, पहले आर्किमिडीज प्रिंसिपल को आप समझिए कि जब भी आप लेट से ये हमारा वाटर है, अगर इस वाटर में हम किसी बॉल को डालें,
लेट्स से ये हमारा बॉल है, देन बॉल हैज़ रिमूव्ड सम वाटर एयर, बॉल कुछ वाटर को डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। देन दिस अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड इज द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉल। ये जितना भी वेट इतने बॉल का पोर्शन वाटर को डिस्प्लेस करेगा, इतने वाटर का वेट उस अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा उस ऑब्जेक्ट के सरफेस पर। ओके, द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड इज इक्वल टू द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। जितना भी वाटर का कोई भी ऑब्जेक्ट वाटर का जो जितना भी एरिया में, जितना भी वॉल्यूम में वो वाटर को डिस्प्लेस्ड करेगा, उतना ही वाटर का वेट अपवर्ड डायरेक्शन में वो फोर्स लगाता है, एंड दैट्स व्हाई योर ऑब्जेक्ट इज फ्लोटिंग इन अ फ्लूइड। आपने देखा होगा कि एक बड़ा बड़ा जहाज क्यों तैर जाता है। लेट्स से दिस इज आवर शिप, अ लार्ज साइज शिप इन अ वाटर, इन अ सी वाटर, ओके, then the water displaced by the ship in a large quantity, जो ये बड़ा शिप है उसके द्वारा जो वाटर रिमूव किया जा रहा है वो बहुत लार्ज क्वांटिटी में है। दैट्स वाई आपका 1,000 किलो का शिप भी वाटर में डूबता नहीं है, बिकॉज हेयर द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द शिप इज ऑल्सो इन अ लार्ज क्वांटिटी, सो द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड इज ऑल्सो वेरी लार्ज। दैट्स वाई your boat is not sink in a sea, and when you placed a small nail in a water, then here the weight of the nail is more than the fluid displaced by the nail। यहाँ नेल का वेट ज़्यादा है बिकॉज वो जितना फ्लूइड उसको डिस्प्लेस करना चाहिए अपने वेट को संभालने के लिए फ्लूइड में, वो उतना डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है, इसीलिए वो उसका वेट ज़्यादा होने के कारण पानी के अंदर चला जा रहा है। और ये शिप क्या हो रहा है कि इसका वेट लेट से 1000 किलो का है, तो ये इतना ही जितना ये फ्लूइड डिस्प्लेस्ड कर रहा है ये भी इधर से, अब इसका 1000 किलो का ये है तो ये इधर फोर्स कितना लगा रहा होगा, वेट इसका क्या होगा, तो 1000 इंटू लेट से G इज इक्वल टू 10, तो ये 10,000 न्यूटन का फोर्स लगा रहा होगा इसका नीचे की तरफ, और वी कैन से दैट वेट ऑफ द शिप इज 10,000 न्यूटन। देन द वेट डिस्प्लेस्ड बाय द शिप इज ऑल्सो वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द शिप इज ऑल्सो 10,000 न्यूटन। दैट्स वाई द शिप इज फ्लोटिंग इन अ रिवर, इन अ सी। ओके, तो आपको समझ आ रहा है कि क्यों ये चीज़ ऐसा तैर रहा है और क्यों एक छोटा सा चीज़ पानी में डूब जा रहा है। पानी में तैरने का एक ही लॉजिक है कि जितना ऑब्जेक्ट का वेट है उतना वो डिस्प्लेस्ड कर दे पानी से। दैट्स वाई जो अपवर्ड फोर्स लगे वो जितना पानी को डिस्प्लेस कर रहा है ये भी इसके वेट के बराबर लग जाए, ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर, तो वो संभाले रखेगा। नीचे से भी उतना ही फोर्स लग रहा है, ऊपर से भी उतना ही, तो बैलेंस्ड है। अगर ये इतना नहीं लगा पाए, अनबैलेंस्ड हो जाए, मतलब कि वेट उतना फ्लूइड डिस्प्लेस ना कर पाए, तो ये बोट डूबने लगेगा पानी में। ओके, तो आई थिंक योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर है, वाई द बॉडी इज सिंक एंड वाई द बॉडी इज फ्लोटिंग इन अ सी। तो मैं आर्किमिडीज का स्टेटमेंट लिख रहा हूँ कि आर्किमिडीज का दिया हुआ कुछ स्टेटमेंट है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, when a body is placed in any fluid, when a body is placed in any fluid, either fully or partially, फुली और पार्शियली का मतलब क्या हुआ, या तो बॉडी पूरा डूबा हुआ है या फिर आधा डूबा हुआ है। तो पार्शियली का मतलब आधा ही डूबा हुआ है, तो वो एक अपवर्ड फोर्स लगाता है। व्हेन अ बॉडी इज प्लेस्ड इन एनी फ्लूइड आइदर फुल्ली और पार्शियली, देन अपवर्ड फोर्स इज exerted by the fluid is equal to
is equal to the weight of the fluid displaced by the object or by the body। आर्किमिडीज का कहना यही था कि when a body is placed in any fluid either fully or partially, then upward force is exerted by the fluid on the body, लिख लीजिए ज़्यादा सही है, by the fluid on the body is equal to the weight of the fluid displaced by the body। When a body is placed in any fluid either fully or partially, then upward force is exerted by the fluid on the body is equal to the weight of the fluid displaced by the body। ये आर्किमिडीज का स्टेटमेंट था कि कोई भी हम बॉडी को फुल्ली और पार्शियली किसी फ्लूइड में डालते हैं तो एक अपवर्ड फोर्स लगता है फ्लूइड के द्वारा, वो किसके बराबर होता है, तो जितना भी वेट ऑफ द फ्लूइड जो बॉडी डिस्प्लेस करेगा फ्लूइड को, उसका वेट कितना होगा उतना ही फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा उस बॉडी पे। तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दिस स्टेटमेंट ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। Now, one more important concept in your syllabus is what is relative density। डेंसिटी के बारे में तो आपने पढ़ा है, पर रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जानना है उसका, उसके बाद ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। दिस इज योर लास्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर, रिलेटिव डेंसिटी। तो यू हैव वेल नोन अबाउट द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, मास अपॉन बाई वॉल्यूम। And what is the SI unit of mass? kg. And what is the SI unit of volume? meter cube. So what is the SI unit of density? kg per meter cube. Okay, kg per meter cube is the SI unit of density. SI unit of density. अब डेंसिटी, व्हाट डेंसिटी से डेंसिटी क्या कहता है अपने आप में, और डेंसिटी से आप क्या समझते हैं ये आपको जानना पड़ेगा। तो डेंसिटी, विद द हेल्प ऑफ डेंसिटी यू कैन ईजिली नोन अबाउट द प्योरिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट कितना प्योर है या नहीं है ये चीज़ पता करना है तो हमें डेंसिटी से पता चलता है। हाउ आई एक्सप्लेन हियर, लेट्स से डेंसिटी ऑफ गोल्ड, डेंसिटी ऑफ गोल्ड, ये प्योर गोल्ड होता है 24 कैरेट जिसमें बोला जाता है। डेंसिटी ऑफ गोल्ड होता है 19300 kg पर मीटर क्यूब। एंड लेट्स से व्हेन यू गो इन अ ऑर्नामेंट शॉप, जहाँ सोनार का दुकान होता है, ऑर्नामेंट शॉप, एंड यू हैव टू बाई अ ऑर्नामेंट फॉर यू, लेट्स से एनी ऑर्नामेंट ऑफ द लेडीज, and you have to buy a ornament, gold ornament, and you says to buyer कि sir please give me a pure gold। then वो आपको नकली भी दे सकता है या फिर मिलावटी भी दे सकता है। अगर वो आपको दिया कि मैम दिस इज़ द प्योर गोल्ड ornament, then how can you check whether it is a pure or not? then you buy and you can check your quality or either this gold is a pure or not। then you can check by the density। आप अपना ऑर्नामेंट लेके आएंगे और उसका डेंसिटी चेक करेंगे। अगर डेंसिटी आपका 19300 उस ऑर्नामेंट का आ रहा है, दैट मीन्स इट इज़ अ प्योर गोल्ड। मतलब कि डेंसिटी बताता है कि कोई
मटेरियल कितना प्योर है। डेंसिटी का मतलब ही होता है, लेट्स से इट इज़ अ पार्टिकल ऑफ गोल्ड एंड इट्स मॉलिक्यूल इज अटेस्टेड विथ ईच अदर वेरी इन अ कॉम्पैक्ट साइज। वन डॉट इज़ अ मॉलिक्यूल ऑफ गोल्ड। तो वो डेंसिटी जिसका ज़्यादा होगा उसमें क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स बहुत ही क्लोजली पैक्ड होगा, मतलब उसके बीच में ज़रा सा भी गैप नहीं होगा, और वो उसके प्योरिटी को बताता है। अगर उसमें हम किसी चीज़ की मिलावटी कर देंगे तो उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप आ जाता है और उसका डेंसिटी कम हो जाता है। डेंसिटी बढ़ेगा नहीं उससे ज़्यादा, क्योंकि प्योर तो है ही वो ऑलरेडी। उससे ज़्यादा डेंसिटी अगर रहता तो वो खुद प्योर में आ जाता, लेकिन उससे ज़्यादा डेंसिटी हो नहीं सकता है। अगर उसमें आप कोई इम्प्योरिटी ऐड करिएगा, लेट्स से इट इज़ अ गोल्ड मॉलिक्यूल, अगर गोल्ड के मॉलिक्यूल में आप कोई बाहर से कोई मटेरियल उसमें ऐड करिएगा तो उसका डेंसिटी कम होगा, उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप बढ़ जाएगा एंड योर गोल्ड बिकम्स इम्प्योर एंड डेंसिटी ऑफ गोल्ड बिकम्स डिक्रीजेस। So density says that with the help of density you can easily find the quality of material. तो आप लिख सकते हैं डेंसिटी helps us to determine the quality of material. मैं डायरेक्ट रिलेटिव डेंसिटी पे भी जा सकता था, पर मुझे लगता था कि डेंसिटी के बारे में कुछ आपको बताना ज़रूरी है, क्योंकि पता तो चले डेंसिटी आखिर होता क्या, तभी तो हम रिलेटिव डेंसिटी समझ पाएंगे। तो डेंसिटी से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी मटेरियल का क्वालिटी चेक कर सकते हैं कि आइदर इट इज़ अ प्योर और नॉट। ओके, अब आई मूव ऑन द रिलेटिव डेंसिटी। व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी? रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस जो आप लीजिएगा उसका डेंसिटी अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर। ये आपका रिलेटिव डेंसिटी का इंपॉर्टेंट फार्मूला। रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर। व्हाई आई हैव टेकन द वाटर? बिकॉज हम लोग वाटर को एक बेस लेके चलते हैं। किसी भी चीज़ की क्वालिटी अगर चेक करनी हो, रिलेटिव डेंसिटी निकालनी हो, तो आप वाटर के डेंसिटी से डिवाइड करके बता सकते हैं कि व्हाट इज़ द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। और यू हैव लर्न अबाउट व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ वाटर, या आप याद भी रखिए, डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1000 kg पर मीटर क्यूब। 1000 kg पर मीटर क्यूब, अगर इसको आप ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करिएगा तो ये हो जाएगा, और 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब कहने का क्या है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यूनिट से समझिए कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में 1 ग्राम वाटर ही आ पाएगा। ओके, डेंसिटी हमें यही बता रहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में 1 ग्राम वाटर ही आ पाएगा। तो डेंसिटी का ये रिलेटिव डेंसिटी का कुछ फॉर्मूला था। प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आफ्टर दैट योर चैप्टर इज एंडेड हियर। ऑल द टॉपिक आई हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास। This is your last topic and I will further discuss some numerical problem here also. That's why your concept becomes more clear in the numerical section. So please note it down. I have discussed the numerical of the NCERT exercise. That's why your concept is too clear in the numerical section. Okay. Please note down one numerical. The volume of 50 gram of a substance
is 20 centimeter cube. If the density of water is 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या नहीं भी दिया है तो आपको याद रखना है वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, मैंने अभी लिखा था. Will the substance float or sink? ये आपका क्वेश्चन है. The volume of 50 gram of a substance is 20 centimeter cube. The density of water is इतना. Will the substance float or sink? ये सब्सटेंस पानी में फ्लोट होगा या सिंक होगा, ये आपको बताना है. तो हाउ यू कैन चेक आइदर अ सब्सटेंस इज फ्लोट और अ सिंक इन अ वाटर? I have discussed before 10 minutes ago that when the density of substance is less than the density of fluid, then your body becomes float, and when the density of substance is more than the density of fluid, then your body becomes sink. So first we have to determine the density of substance, तभी हम बता पाएंगे कि ये पानी में तैरेगा कि डूबेगा. Density of substance. What is the formula of density? Mass upon में volume. What is the mass given in your question? 50 gram. 50 gram upon what is the volume? 20 centimeter cube. ये आप कट आउट करिएगा तो ये आ जाएगा 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ये हमारा डेंसिटी आ गया सब्सटेंस का. Is this density is greater than water or less than water? So you can easily check out with the density given in the question, or either you have to learn this the value of density of water. So 2.5 gram, it is a greater value to the water, so this substance becomes sink. So here we can write the density of substance. Density of substance is greater than the density of water. वाटर की जगह कोई भी फ्लूइड दे सकता है, जो भी फ्लूइड रहेगा हम लोग उसी के डेंसिटी से कंपेयर करेंगे. अब डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, सो द substance will sink in water. Pause the video and note down this solution. So there are lots of numerical problem in your exercise, so you can try the numerical section, and in the next video I will discuss all of the numerical which is given in your exercise, and till that you can also try all the numerical problem, and you have any doubt you can ask in the comment section. Then thank you very much.